Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Colonialism and Tribal Societies. And before starting the chapter, we have to know some important terms like Adivasi, the Aborigines or the natives or original inhabitants of a place, and habitat, that is dwelling place. Now let's start the chapter. Tribal societies and economies. India is one of the most diverse countries in the world. The country showcases a very high degree of social and ethnic diversity. The population of India subsumes within it a multitude of caste and tribal groups representing different stages in the social evolution of the humankind. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है. यहाँ अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं और अलग अलग स्टेजेस पर सोशल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड को रिप्रेजेंट करते हैं. According to census of 2011, 10.43 CR people, 8.6% of the total population of the country of India belong to scheduled tribes. On the basis of numerical strength of tribal population, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand were ranked in descending order according to the tribal population. Okay. However, as percentage of tribal population to a total population, Lakshadweep Island and Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Dadar and Nagar Haveli, Manipur, Tripura rank in the descending order in percentage, and mainly nearly 1/3 of the tribal population of the country is concentrated in 15 districts of Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan states. The largest tribal group of the Gonds, that is 7.4 million, followed by Bhils 7.3 million, Santhals 4.2 millions and Mizos that is 2.0 millions etc. और इस तरीके के ट्राइबल ग्रुप जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किनकी है, गोंड्स की, और उसके बाद सबसे कम जो हैं दैट आर मीजोज. ओके. नाउ व्हाट इज़ अ ट्राइब. अब हम बात करें, अभी हमने बात की कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं. ओके. अब हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्राइब. The word tribe means to a state or tribalism which is ethnic as well as political. A tribe is also known as जनजाति और आदिवासी. ट्राइब को हम क्या कह सकते हैं, ट्राइब को हम कह सकते हैं, एक वर्ड है दैट इज आदिवासी और जनजाति, दैट इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, यानी एक ग्रुप जो एक ही जगह पर रहता है, उनका बिल्कुल डिफरेंट कल्चर होता है सोसाइटी से हटके, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही वो सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं जो उन्हें बाकी की सोसाइटी से डिफरेंट बनाती हैं. ओके. दैट इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्राइब. ओके. नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. A total of 365 tribal communities are found in India. इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब में से 365 ट्राइबल जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में वो रिकॉग्नाइज की गई हैं. Now the term tribe is usually applied to the aboriginal population inhabiting the most inaccessible hilly and mountainous tracts of India. यानी जो मोस्टली inaccessible एरिया होते हैं, जहाँ हम पहुँच नहीं पाते easily, mountainous एरिया, hilly एरिया, वहाँ पर जो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो बसे हुए हैं. ट्राइबल ग्रुप जो है they speak a different language, belongs to a distinct racial group and follows a typical religion and perform various rituals. Okay. यही चीज़ें इन्हें बाकी की सोसाइटी से आइसोलेट करती हैं, अलग करती हैं. The tribals live in natural surrounding. Their habitations consist of a few huts which have generally stone paved or plastered floors, mud walls and thatched roofs. They subsist on total resources. They practice a variety of economic activities like hunting, food gathering, fishing, animal husbandry and farming. अलग अलग ये जो नेचुरल क्लाइमेट होता है, नेचुरल सराउंडिंग होता है, उसी में रहते हैं. ओके. कुछ आपस में हट बना के एक ग्रुप में रहते हैं, या फिर प्लास्टर फ्लोर्स होते हैं, इनके मड की वॉल होती हैं, थैच्ड रूफ होते हैं, और ज़्यादातर ये लोग कैसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग.
Changes within tribal economies and societies in the 19th century. Each tribal group occupies a definite territory and practices a distinct mode of economy. Some, like the Gonds, were able to form their independent states during the medieval period, as do the tribes of the northeast in the present day. The Gonds of Madhya Pradesh retained their traditional Gond territory and ruled over the independent Gondwana state from the 14th to 18th century until they were subjugated by the Marathas. Okay, Gond people जो थे उन्होंने तब तक रूल किया 18th century तक, तब तक मराठा किंगडम ने उन्हें वहाँ से हटा ना दिया. And they practiced hunting, fishing and food gathering and later switched over to shifting cultivation. The Bhils were nomadic by nature, but now they have taken to sedentary life to settled cultivators. जो भील्स थे वो nomadic in nature थे, यानी इधर से उधर मूव करते रहते थे, लेकिन कल्टिवेशन की वजह से वो एक जगह पर सेटल्ड हो गए हैं. द संथल्स हैव कंटिन्यूड टू बी सेडेंटरी कल्टिवेटर्स while many of them switched over to casual workers in plantations, mines and industry. Such changes in the economy of tribals were brought about by interaction between the tribes and non-tribes. संथल्स जो पीपल हैं वो मोस्टली मूव हो गए हैं कैजुअल वर्कर की तरफ, जैसे कि प्लांटेशन में काम करना, माइंस में काम करना या फिर इंडस्ट्रीज में काम करना. इनकी वजह से जो ट्राइब और नॉन ट्राइब के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ गया है. ओके, तो द इंडियन ट्राइब लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्वाइट अर्ली इन हिस्ट्री. ट्राइबल एग्रीकल्चर remained mostly subsistence in character. The British revenue administration in the 19th century found the community's mode of land ownership still intact in many tribal areas. However, the practice did not continue for long. Gradually, lands were transferred to non-tribal peasants and पहले क्या होता था, जहाँ पर जो ट्राइब ग्रुप रहता था वो उन्हीं की लैंड होती थी, वो वहीं पर एग्रीकल्चर करते थे. लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो लैंड है वो जिससे बिलोंग होती है, नॉन ट्राइबल पीपल हैं, उनको वो ट्रांसफ़र की जाती है. तो इससे क्या हुआ है, जो ट्राइबल अपने ग्रुप में जो लोग रह रहे थे उनकी जो लाइफ है, उनका जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो रहा है. ओके, तो इससे उनकी जो रहने की जगह थी वो एक तरीके से उनसे छिन रही है, या उनका कल्चर जो उनका एक यूनिक कल्चर था जिसको वो रिप्रेजेंट करते थे अपने ट्राइब को, वो थोड़ा ऑल्टर हो रहा है. द ट्राइबल पीपल वर ऑल्टरनेटेड फ्रॉम देयर लैंड. द डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज लेइंग ऑफ रोड्स, रेल ट्रैक्स, माइनिंग एटसेट्रा इन द hilly and forested areas depleted the tribal resources, bringing uncertainty, misery and poverty to them. और अब जैसे जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं या प्राइवेट एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रोड बनाना जंगलों में या हिली एरियाज़ को डेवलप करना, रेलवे ट्रैक्स बनाना, माइनिंग करना, इसकी वजह से ट्राइबल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल और पुअर हो गई है. इट हैड an adverse impact on their society. Such developments in the Chota Nagpur region in particular resulted in structural changes in the tribal economy in several ways. जैसे the first is the tribals were displaced from their lands and deprived of access to the forest, but they were not satisfactorily rehabilitated. उनको उनकी जगह से हटा दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है, नई जगह तो दी गई है फॉरेस्ट में, लेकिन वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. The influx of the non-tribal people led to a acute demographic changes in the tribal hamlets. And eviction of tribals from their traditional lands caused occupational changes. उनकी लैंड उनसे छिन गई है, तो जो उनका ऑक्यूपेशन था मेन, जैसे कि एग्रीकल्चर, वो एक तरीके से शिफ्ट हो गया है, वो अलग अलग अब कंपनी या फैक्ट्रीज में जाकर काम करने लगे हैं. एंड द लास्ट इज द मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स मेड देयर लिविंग कंडीशंस वर्स. अब जहाँ के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्राइबल ग्रुप दूसरी जगह मार्जिन यानी कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे उनकी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो वर्स हो गई हैं, क्योंकि आप नई जगह जाओगे, फिर से नई चीज़ें करोगे, तो उनकी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो बुरे तरीके से प्रभावित हुई हैं. नाउ हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स.
The 7 northeastern states of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura have just 12% of the country's tribal population. 6 states were created in the region on the basis of dominant tribal identity specified as under Nagaland, जहाँ पर कौन सा ग्रुप है आपका ट्राइबल ग्रुप? नागाज. ओके. मणिपुर जहाँ पर आपके नागाज एंड कुकीज रहते हैं. एंड द थर्ड इज मिजोरम जहाँ पर मिजोज है. एंड त्रिपुरा त्रिपुरीज. मेघालय जहाँ पर आपकी ट्राइबल ग्रुप है खासी, जयंतीस, गारोस. और इस तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप बसे हुए हैं. ट्राइब्स आर मोस्टली अ रूरल फिनोमिना, यानी ज़्यादातर मोस्टली विलेजेस एरिया में, एक रूरल है ये, विलेज एरिया कहते हैं हम इसको. अबाउट 93% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज. इन मिजोरम द ट्राइब्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली ड्रॉन इनटू द अर्बन वे ऑफ लाइफ. और ज़्यादातर अब जो है 93% जो है दैट टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज, विलेज एरियाज में. जबकि इन मिजोरम द ट्राइब्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली ड्रॉन इनटू द अर्बन वे ऑफ लाइफ, यानी मिजोरम में जो मिजोस जो ट्राइबल पीपल हैं वो अब अर्बन वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइबल रिवोल्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. The northeastern region of India comprises of 7 states where tribal populations is quite dominant. As a result of their continued oppression, many tribal communities protested against their exploitation at the hands of the British. नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है इंडिया के, वहाँ पर 7 स्टेट्स कंप्राइजेज है, मतलब 7 स्टेट्स आती हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है. और कंटिन्यूस ऑपरेशन के कारण जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे उन्होंने क्या किया? अपोज किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ. उन्होंने अपनी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया. The Khasis are a prominent tribe of Meghalaya, occupying the hilly region between Jayante Hills and the Garo Hills. They stood up in revolt against the British, who constructed a road passing through their area. Britishers ने वहाँ से एक रोड बनाने की कोशिश की थी फ्रॉम मेघालय. तो खासीज जो ट्राइबल ग्रुप है मेघालय में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि वो ये रोड नहीं बनने देंगे. इसी तरीके से और भी काफ़ी रिबिलियन हुई है जब जब किसी ने वहाँ पर रोड बनाने की कोशिश की है या रेलवे ट्रैक बनाने की कोशिश की है. तो जो ट्राइबल ग्रुप हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उन्होंने काफी रिवोल्ट किया है. नाउ नेक्स्ट इज ट्राइबल रिवोल्ट्स इन द छोटा नागपुर रीजन. छोटा नागपुर रीजन वो भी आपको पता है, बहुत थिकली फॉरेस्टेड हिल्स हैं वहाँ पर, प्लेट्यूज है ये एक, एंड एक्सटेंडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा. इट इज़ होम टू सेवरल ट्राइब्स लाइक संथल्स एंड कोल्स, मुंडास एंड खोंदास. यहाँ पर भी काफ़ी ट्राइब्स रहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक फॉरेस्टेड एरिया है. ओके, जो आपके छोटा नागपुर रीजन में जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप रहते हैं उन्होंने कैसे रिवोल्ट की. जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कोल्स की. कोल्स पीपल जो हैं, कोल्स ट्राइबल ग्रुप जो है, ये सबसे पहले थे जिन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ. जब ब्रिटिशर्स अपना जो एम्पायर है वो एक्सटेंड करना चाहते थे, बट कोल्स पीपल आर फ्रीडम लविंग पीपल, तो इन्होंने क्या किया, वो फ्रंटियर एक्सीड करने से मना कर दिया और बहुत टाइम तक इनकी रिवोल्ट रही. गांव में बहुत सारे घरों को जला दिया गया, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए. इन 1827 दे सरेंडर्ड बट ओनली टेम्परेरली. 1827 में इन्होंने एक तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर कर दिया, बट वो एक टेम्परेरली बेसिस पे था. उसके बाद फिर से इन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया. उसके बाद दूसरा ट्राइबल ग्रुप है मुंडास. द मुंडास टू लिव इन द छोटा नागपुर रीजन. दे रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ग्रांटिंग फार्मिंग राइट्स टू आउटसाइडर्स. जहाँ पर आउटसाइडर्स को, जो ब्रिटिश पीपल थे वो आउटसाइडर को फार्मिंग राइट दे रहे थे, वहाँ पर मुंदास जो ट्राइबल ग्रुप थी छोटा नागपुर रीजन में, उन्होंने इनके खिलाफ एक रिवोल्ट निकाला, प्रोटेस्ट किया. ओके, उसके बाद दूसरे द खोन्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन, उन्होंने भी ओडिशा रीजन लाइंग इन ओडिशा, जो ओडिशा में बसे हुए हैं, ऑल्सो रोज इन रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1846. दे फियर्ड दैट द ब्रिटिश वुड डिस्पोजेस दैम ऑफ देयर लैंड
force them into bonded labor and impose heavy taxes, क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें ऐसा लगता था जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हें क्या करेंगे, उनकी लैंड को डिस्पोज कर देंगे और उन्हें फोर्स करेंगे लेबर की तरह काम करने के लिए और उनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लेंगे, तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया. एंड द लास्ट, द संथल रेबिलियन. The Santhal people that rebelled of 1855 to 56 witnessed the culmination of a series of tribal uprisings in the Chota Nagpur region. The Santhals living in Singhbhum, Hazaribagh, Bhagalpur, Moghar, Birbhum एंड सो ऑन, अलग अलग जगह पर ये लोग बसे हुए थे और इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आई ब्रिटिशर्स की, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ को अफेक्ट किया. और जो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है फॉरेस्ट के ऊपर या सेटलमेंट मेजर्स को यहाँ से हटाना चाहती है ट्राइबल पीपल को, उसके अलावा जो जनरल लॉज आए दैट शैटर्ड देयर लाइफ. ओके, सो दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया. और इस तरीके से आप इसमें डिटेल से पढ़ोगे, आप खुद पढ़ोगे फिर से इसको कि कैसे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप ने क्यों, उनका कारण क्या था ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का. ओके, नाउ हियर इज अ पर्सन दैट इज कॉल्ड बिरसा मुंडा. फेमस था ट्राइबल ग्रुप में से. हु वॉज बिरसा मुंडा? फ्रॉम द मुंडाज ट्राइब. ओके, ऑल्सो कॉल्ड होरोको, are a major tribe of India which populate the Chota Nagpur Plateau region in Jharkhand. They practice sedentary cultivation. Sedentary cultivation करते थे. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ये एक ट्राइबल ग्रुप है that is called Mundas. After the revolt of 1857, another attempt was made at rebellion by Birsa Munda. 1857 के बाद फिर से एक रेबिलियन स्टार्ट हुआ, एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिसको लीड कर रहा था बिरसा मुंडा. ही हैड जॉइंड द जर्मन मिशन बट रिवर्टेड टू द ओरिजिनल मुंडा फेथ ऑफ हिज एंसेस्टर. और एक जनरल मिशन उसने ज्वाइन कर रखा था, लेकिन फिर से अपने जो एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज थे बिरसा मुंडा, मुंडा ट्राइब में, फिर से वो वापस उन्हीं के साथ आया. लेटर he promulgated a new faith and attracted many disciples who saw him as a prophet or incarnation of God who had supernatural power. और बहुत सारे इसके शिष्य भी बने, डिसिपल भी बने, जो ऐसा सोचना था जिनका कि बिरसा मुंडा इज अ पर्सन जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर है. ओके, हिज पॉपुलरिटी अलार्म द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था वो उस टाइम पर, बहुत सारे फॉलोअर बन चुके थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उससे डर रहे थे, उनको एक फियर था. The authorities arrested him but had to release later following a tough tribal resistance. Soon after his release, Birsa resumed his activities. Facing a famine and epidemics, the tribal resisted the imposition of non-tribal peasantry on them, which disposed them of their lands. Munda organized a military force by training them in warfare. ओके, फिर से उसके बाद बिरसा मुंडा जो है फिर से एक वारफेयर उसने शुरू की, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था बिरसा मुंडा को, लेकिन इतनी ज़्यादा फॉलोवर थी कि उनको वो रिलीज़ करना पड़ा. और रिलीज़ के बाद ही फिर से जो फेमाइन का इशू था या एपिडेमिक्स थी उस ट्राइबल ग्रुप में, तो फिर से बिरसा मुंडा को ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा. हिज ट्रेन फॉलोअर्स, मिशन हाउसेस, ब्रिटिश सेटलमेंट्स, पुलिस स्टेशन ऑफ न्यू जमींदार्स. और वो क्या करता था, ट्रेनिंग देता था वारफेयर की. जो जमींदार या पुलिस में जो लोग होते थे जिनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती थी वो ट्रेनिंग देता था. इन द एंश्योरिंग रिटेलिएशन बाय द ब्रिटिश, मैनी रेबल्स वर अरेस्टेड एंड स्कोर्स वर किल्ड. अ हंट वॉज लॉन्च्ड टू कैप्चर बिरसा, हु वॉज लेटर अरेस्टेड एंड लॉज्ड इन जेल वेयर ही डाइड ऑफ चोलेरा इन 1900. और उसके बाद उसको फिर से पकड़ लिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके कारण बहुत सारा ब्रिटिशर सफ़र कर रहे थे, बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए थे, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, जहाँ पर 1900 में उसकी डेथ हो जाती है. नाउ हियर इज़ अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. 8.6% of the population of India is classed as scheduled tribes population. And Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Gujarat and Jharkhand rank in the descending order of the numerical strength of scheduled tribe population.
A tribe is a self-contained social unit consisting of aboriginal population belonging to a distinct race, inhabiting inaccessible areas, speaking a definite language and practicing a typical religion and rituals. Tribe economy and society have greatly suffered from development activities. Every tribe depends upon the natural resources of environment and occupies a definite territory. The British revenue policies in the 19th century proved disastrous of tribal as they were disposed of their land and alternated from their homeland. As a result of their continued oppression, many tribes rose in revolt against the British regime. And the Khasis, the Singhos, the Nagas, the Kukis, etc., inhabiting the northeastern states, revolted against the British rule. In the Chota Nagpur region, the Kols were the first to rise in revolt. The Mundas and the Khans also revolted. The Santhal rebellion under the leadership of Sidhu and Kanhu was the culmination of a series of tribal revolts in the Chota Nagpur region. Birsa Munda was a great hero of the Munda tribe. The revolt led by him was suppressed in 1900. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार थोरोली इसको फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.